whatever AI model you want, it's available. So unless you are looking for some international legal ramifications, you have to go for domestic AI tools only, because they will have your domestic data. But for us tax lawyers, we need not go into any of these AI modules, because around 44,000 Supreme Court judgments have already been put on AI model. You can go to Supreme Court website. They have executive summaries of each judgment. Most of the metro high courts also have put their entire legal system on AI. It has been going on for last so many years. That's why, the judgment says whether this judgment should be reported. Reported means should it be put on computer. But before you even dream of using AI, if you do not know law, AI is useless for you. अब आपका इनपुट टेस्ट क्रेडिट डिनाई हुआ, किस ग्राउंड पे हुआ? पहले आपको ऑर्डर पढ़ने, फिर सेक्शन 16 के कौन से सबसेक्शन में डिसअलाउ हुआ, क्या वो सबसेक्शन उसमें है, क्या वो उसमें ग्राउंड है? फॉर एग्जाम्पल यू सी आरसी कैंसलेशन केसेस 29(2) ABC जो भी क्लॉज है, जिस ग्राउंड पे ये कैंसिल करते हैं हमारे डिपार्टमेंट के लोग, वो ग्राउंड तो है ही नहीं. Now if you do AI 29(2), that will research based on those sub clauses only. जो आपके पास ऑर्डर है उसमें वो सब क्लॉज लिखी नहीं, उसने ऐसे लिख दिया. The supplier is fake, therefore RC is cancelled. Or somebody says there's a letter from DGGI which cancel your RC, we are suspending, why should we not cancel show cause? अब ये प्रोविजन तुम्हारे AI मॉडल में नहीं हो सकते. तो here you have to ask a question, how do you approach this case? For example, one of the questions could be, can DGGI direct state authorities to cancel my RC? Now AI model can interpret section 5, section 6 or any notification or circulars. So if you want to be a good lawyer, I will tell you we are done with. I don't want to do advocacy anymore. What I do, I'm very happy. But if you want to do litigation and advocacy both, so you have to put up the right question. For example, in such a case where DGGI is issuing a letter to the state authorities to initiate cancellation proceedings based on whatever investigation they have done, you have to ask a question, can they direct? Do they have a power? If the proper officer, being a quasi-judicial authority, can he come under dictation? It goes to the root of jurisdiction. He cannot. So this is 90% of your case. Your facts may be against you. आपके सारे सप्लायर चोर हों, but the proper officer cannot cancel RC based on dictation from DGGI. अब जो हमारे भाई लोग क्या करते हैं, वो चिट्ठी भी आपको लगा के दे देते हैं कि सेक्शन 29 का नोटिस है, चिट्ठी भी साथ दे दिया आपको. So if you know how to use AI, your approach goes different. आप कितनी मर्जी लंबी अपील बनाओ, it has no sense. They will not believe in your merits at all. So first you have to find out, can you draft an appeal based on jurisdictional issue? For example, again AI model I give you in one of the cases we did. Additional director drafted a show cause notice, disposed of by assistant commissioner. Not possible. Same level of authority can dispose of. How can assistant commissioner take a different view than the additional commissioner? Now here, so if you know the legal proposition, what is your legal premise based on which you want to build your litigation strategy, AI helps you to navigate through the legal system and give you an answer. लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो AI में धक्के खा रहे कोई फायदा नहीं उसका. मैंने अभी किसी डिपार्टमेंट अपील का रिजॉइंडर फाइल करना है महाराष्ट्र का,
उसके वकील ने उस पर लिखा है, इट इज लॉथेबल, कोई सिर पैर नहीं उस जो भी लिखा गया है, कोई इशू क्या है उसने पता नहीं, एक्साइज की जजमेंट, ट्रिपल की जजमेंट, ये जजमेंट, वो जजमेंट, वो 3-4 पेज के जजमेंट के पैराग्राफ लिख दिए। तो मैंने उनके लीगल कमीशन से बात की, मैं किसने बनाया? कहता है ये हमारे लॉर्ड पार्ट ने बनाया जी, इतना अच्छा है। मैं कहा 100 में से -0 है, जो इशू तुम्हारा वो तो इसमें इशू ही नहीं है। दैट इज ही स्क्रैप थ्रू एआई मॉडल, ही फाउंड कि उसमें मेरे कुछ हक में लिखा है, तो उसी जजमेंट को उसमें छाप दिया पकड़े। Now what happens when you go to courts using such AI information? Supposing हमारे आप मूड ट्रिब्यूनल में आते हो, ये जो तीनों हमारे डेंजरस जजेस हैं, इन्होंने AI नहीं पढ़नी, आपको बोले ये पढ़ के बता क्या है, कहाँ है ये? Since you have not read, since you have done nothing, so what? You will be blank. Case dismissed. That's what is happening in High Court and Supreme Court, where they question lawyers. लॉयर्स को क्या पता क्या लिखा है ये नहीं, उसने तो पिटीशन बना के दे दिया, पैसे ले लिए अपने। सो इफ दिस स्लाइड टेल्स यू इफ यू हैव टू नेविगेट थ्रू लीगल रिसर्च, यू मस्ट नो व्हाट इज द की लिटिगेशन इशू इन द ऑर्डर यू हैव इन योर हैंड। किसी भी ऑर्डर में 1 या 2 इशू होते हैं। मैं एज ए लॉयर हैव नेवर एक्सेप्टेड ए प्रपोजिशन कि आपके 20 करोड़ बिल हम बनाते हैं पैसे लेने के लिए, कि 40 पेज की बिल बनाएंगे, पैसे ज्यादा मिलेंगे। The cases are one or 2 points only. तीसरा पॉइंट कोई नहीं होता. That is why when you go to High Court, you may frame 10 substantial questions of law. Judges frame 1. कि बाकी 9 तुम्हारी सारी बकवास है. So that to hit that one substantial question of law, you have to know the law. And I am an advocate for this. Right from first appeal in GST law, you must frame a question of law. आपकी कोई अपील करो वो हाईकोर्ट में जानी है जीएसटी लॉ, रिमांड वो कर नहीं सकते एक्सेप्ट उन्होंने करने ने। ट्रिब्यूनल में भी रिमांड होंगे या डिसमिस होंगे। तो इफ यू हैव टू गो टू हाई कोर्ट, you have to start framing substantial question of law right from day one, because the law applicable on the date when you are filing appeal or when you file the return shall remain applicable till Supreme Court. Subsequent amendments in law will not bother at all. So अगर आपका उसी टाइम क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने ठीक फ्रेम कर दिया based on whatever AI you use to research or navigate through a legal research system, it will help you. This we have done. अब ये कोर्ट्स में AI का बहुत फायदा होता है, शेड्यूलिंग, डेटिंग, पुटिंग प्रायोरिटी ऑन केसेस. So if a chief justice has decided a particular matter, registry can put up all the cases together and put up a note to the chief justice कि इस तरह के 50 केसेस हो रहे हैं, shall we put them on hearing? I don't know which chief justice will say no. 50 cases disposed of, and they might issue direction to all the high courts to club up all those cases, batch cases, and finish it off. I tell you this mineral royalty case. मैंने पीछे भी एक वीडियो शेयर किया, मैंने दी थी किसी ग्रुप में शेयर किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइडेड कि भी इस पे रॉयल्टी पे आपको स्टेट को टैक्स मिलता है, सेंटर को नहीं मिलता. अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां 2 राइडर लगाए, सिर्फ 10 साल पीछे जा सकते हो और टैक्स 12 किस्तों में आपको देना है, irrespective of what a particular VAT enactment said. It's Article 142 order. I know in Andhra Pradesh, commissioner is a very good guy. उसने सारे केसेस एक दिन में लगा दी, डिस्पोज ऑफ. He can do anything. सुप्रीम कोर्ट ने बोले ऐसे करना तो उसको ऐसे करना है भाई. अब उनको पैसे भी आने शुरू हो गए, डायरियां भी खत्म हो गई, फाइलें भी खत्म हो गई, वो क्लाइंट भी खुश हैं अपने कि जाल छूटी हमारी. महाराष्ट्र में, मैं पीछे भी पुणे में था, उन्होंने उसका 20 साल का डिमांड निकाल दिया क्योंकि उसने वो जजमेंट नहीं पढ़ी थी. मैंने वेंट टू द जॉइंट कमिश्नर, मैं कहा सर ये मतलब आर यू अबव सुप्रीम कोर्ट? कहते वर्मा जी क्या हो गया? मैं कहा जी जजमेंट है, मैंने ये लास्ट पेज पढ़ी है आप. कहते नहीं सर इनका जो काउंसिल है उसने ही डिड नॉट पॉइंट दिस आउट. सर आपको पढ़ना चाहिए था, टैक्स तो आप लगा रहे हो.
टैक्स तो सुप्रीम कोर्ट की बेस पे लगा रहे हो ना, तो उसका जवाब से आता है शोकाज नोटिस तुम्हारे सिस्टम से आए, हमने इनको दे दिए, बस बात करता बात पुत्र सारे। Therefore, in administration also, चाहे आपका अगर आपके ऑफिस में बहुत एजुकेशन होता है या आपके बहुत सारी अपील वर्क होता है, तो इट कैन हेल्प यू आउट थ्रू AI सिस्टम। If you are going through AI, that human emotion may not be able to be displayed. तो अगर आपको ह्यूमन इमोशन डिस्प्ले करनी है तो आपको AI के थ्रू लॉ पढ़ के कोर्ट में वो दिखाना होगा, क्लाइंट को सपोर्ट करने को। तो इस पे उन्होंने बोला कि जी AI वाला जो सिस्टम था इसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ। सिमिलरली इन क्रिमिनल केसेस, जो लास्ट 3 लाइन्स हैं, AI really may not help you because those cases are strongly based on evidence or maybe circumstantial evidence. In Indian Evidence Act there is a section called section 6. They call it theory of res gestae, theory of circumstantial evidence. वो AI मॉडल उसका आपको आंसर नहीं करते, वहां आपको ह्यूमन टच चाहिए। तो AI का ये एक बैड इफेक्ट भी हो सकता है। अब टैक्स अथॉरिटीज, लास्ट 3-4 स्लाइड्स। अब आप नोटिस आता है आपको सेक्शन 74 का कि ये फलां सप्लायर चोर है। उनको कैसे पता चोर है? Because they have an AI system called A1. Central government has a system to administer GST law, A1 AI system. There are 10 points which are flagged on the particular model, particular supplier. अगर 10 में से 6 उसमें रेड पॉइंट्स हैं तो देयर रिसर्च शोज दिस इज अ बोगस डीलर। फॉर एग्जाम्पल, बंदे का अनपढ़ है, उसका प्रोफाइल 0 है, दुकान किसी बड़ी घटिया सी जगह पे एड्रेस नंबर लिया हुआ है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, ही इज नॉट एबल टू कंडक्ट दैट बिजनेस जो उसका प्रोफाइल है। इस तरह के 10 पॉइंट्स हैं। अगर 10 में से 6 पॉइंट्स रेड फ्लैग हो गया, दे विल से दिस सप्लायर इज बोगस। I give you one example. A supplier raises a bill, consultancy services 10 crores. Let's say he's a lawyer. अब इसके रिवर्स चार्ज है। अब रिवर्स चार्ज फेक हो सकता नहीं हो सकता, वो डिबेटेबल इशू है। आई एम नॉट एन एडवोकेट टू फेवर के कैश लेंडर है तो आपको ITC मिलना चाहिए। For example, in one of the cases we have, they say these are hawala transactions. They have called a lawyer also. So what kind of service did you provide? Tell us. Simply by paying 18%, जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, तो what kind of transaction is this? वो वकील दूसरे क्लाइंट से इतनी फीस लेता है क्या? अब जो मेरे पास केस आया, ये 2 दिन पहले की बात है। मैंने कहा ये कौन है तुम्हारा रिसिपिएंट? कहते हैं हमारी सिस्टर कंपनी है। मैंने उनसे बात की, कहते हैं हमारे पास तो ITC एक्सेस पर है करोड़ों रुपए का। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, ये तो बढ़िया काम है। आई एम लाइकली टू गिव देम ओपिनियन कि यू कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट, यू हैव टू आंसर द शोकाज नोटिस। नाउ इट्स अ कैश लेजर। RCM तो कैश पेमेंट की, ITC से नहीं हो सकता। But RCM is also including definition of input tax credit. So can you say section 60 is not applicable? अब जिसमें हमने जब AI पे रिसर्च डाला, इसमें 3-4 एडवांस रूलिंग निकली, where somebody favored, somebody didn't favor. But most of the rulings were aligning with my line of thinking. It is a debatable issue. अब supposing उसने 5 साल तक किया, मैं इसी को पढ़ रहा हूं जो आपको बता रहा हूं, उसने आगे 5 साल तक ऐसा किया, एंड यू हैव कम टू ओपिनियन व्हाट इज बीइंग डन इज रॉन्ग, तो अगले 5 साल की गलतियां आप आज निकाल सकते हो। यू कैन टेक रेमेडियल मेजर्स इफ यू आर अलाइव टू द क्लाइंट्स नीड्स। इसी तरह डिपार्टमेंट वाले अगर 1 साल में आपने गलती की, दे आर पुट एन AI मॉडल, क्या जो सप्लायर अगले 5 साल भी इससे यूज किए, दे विल गिव यू नोटिस फॉर 6 years। 1 साल का नोटिस, 4 साल की स्टेटमेंट लगा देंगे साथ, बिकॉज सेम इशू। 74 is applicable. So this is how AI model works.
आई कैन टेल यू जीएसटी में जितने केस ने 74 के बने 90% ऑन मैरिट्स केसेस आर करेक्ट ऑन मैरिट्स jurisdictional issue, legal issue जो हम वकील लोग निकालते हैं अलग इशू पर मैरिट्स पे यू कैन नॉट टेक ए फ्लॉ और उनका ए मॉडल कहता है कि ये जो दुकान कभी ना खुली ही नहीं अब हम क्या बोलते हैं हमारे की गलती आपने नंबर दिया था यू गेव हिम अ लाइसेंस टू किल बट पार्लियामेंट आल्सो गेव अ प्रोविजन इन 29(2) if you have suppressed the facts you take decision by way of fraud your RC can be cancelled retrospectively अब जो 13 करोड़ रजिस्ट्रेशन है जीएसटीएन में आज 13 करोड़ को कोई भी ह्यूमनली फिजिकली वेरीफाई नहीं हो सकते दे बिलीव इन योर पेपर्स इफ द पेपर themselves are found fake this argument will have no value कि हमें क्या पता वो तो रजिस्टर्ड था that is why Supreme Court in Shanti Kiran, Ecom Gill or other judgments they say if other compliances were done correctly so that phrase carries lot of weight to you so they can use the tax evasion अब आपके टैक्स ऑडिट्स हैं सॉरी टू से 2-3 मेरे पास टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो किसी अपील में है सारी गलत है टैक्स कम दिया गया या गलत ज्यादा दिया गया तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और यू फॉर्म 9 जो भी आप लोग भरते हो थोड़ा सा AI यूज करो ना उसमें जहां आपको डिबेट सो दैट यू फाइल करेक्ट वन And this doesn't take time, it takes half an hour. Client pays you so much money. You should owe this your responsibility कि हम जो काम करें वो ठीक करें. तो टैक्स ऑडिट्स में बाहर के लोग इसको बहुत यूज करते हैं जहां लीगल इश्यूज होते हैं. टैक्स कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग. So if you have an AI model working, 180 days issues. Tax exempt, taxable supply 17(1), 17(2), 17(5). AI will throw the data out. Then you take a call कि आपको इसका ITC लेना है या नहीं लेना है. Legal research we have done. अब ये जो डाटा कंसर्न है ये एक AI का बैड इफेक्ट है. जो भी आप काम करते हो जैसे आज ऐप यूज करते हो वो कहते हो शुड बी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन वी से नो वंस यू से यस दैट इंफॉर्मेशन गोज टू thousands of apps तभी आपके AI मॉडल में आते हैं जी आपने ये निक्कर खरीदनी थी वो कितनी ऐप से आपके आ गए दिस कलर वी है इसका ये कीमत है ये कीमत उनके पास कहां से क्या वो डाटा बिकॉज AI will thrive it out and through a machine learning process it will throw wherever machines are adopted to that model तो वो आपको लगातार अगर आपने एक पैंट पे आंख रख दी अगली स्लाइड में पैंट पहले नंबर पे आ जाए You've just seen that trouser. और उस कलर के शाम तक 4-5 ऐप आपको ट्राउजर दिखा देंगे फिर उसकी लिस्टिंग कर देंगे कौन सा महंगा कौन सा सस्ता So this what AI does they use your data that's what when this US trade was done and Congress made a statement have you sold your data और वो झगड़ा डाटा का ही है हमारा 140 करोड़ का डाटा किसी कंट्री को मिल जाए and they can effectively use it, they can finish you. I think this you know, this you must be doing. Drafting. इससे बड़ा टूल आपके पास नहीं है जो लोगों ने डेडिकेशन सीखना है एक पीले ड्राफ्ट करनी सीखनी है. It tells you the formats, the court fee, the revenue stamp to be put, the grounds to be taken, the appraise to be made. It cannot write factual matrix. Factual matrix you have to write. For example, you give a prompt, RC cancelled for non-filing of returns for 4 months. ना तो 6 महीने का है. Grounds of appeal. एक ही ग्राउंड ऑफ अपील है कि 6 महीने के बाद में बाकी तो कुछ है ही नहीं. आप कहते हो RC cancelled as suppliers found fake. Advice ground of appeal. It will give you a 2-3 pages ground of appeal. डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन फाइल किया यू हैव टू रिप्लाई टू दैट ऑब्जेक्शन दैट्स आल्सो एन अपील फीड दैट इन AI मॉडल दैट टेल यू इसके ये पॉसिबल आपके रिप्लाईज उसको आप हार्ड कॉपी लीजिए उसको पढ़िए
सॉफ्ट कॉपी से जो आपको ठीक लगता है उससे करिए, बट इट हेल्प्स यू। सपोजिंग आपको 6 तरह की रीट है, मैं नहीं समझता हम सबको पता है 6 तरह की रीट कौन सी होती है, शायद 1-2 भी नहीं पता होगा किसी को। तो यू राइट ड्राफ्ट रीट ऑफ कोऑपरेंटो, आपको पता होना चाहिए ये रीट किस लिए यूज की जाती है। इट विल टेल यू कि ये रीट में ये मेन चीजें आपको डालनी है। दैट इज जो पहले आप 80% काम टाइप करके करते थे किताबों से पढ़ पढ़ के, वो आपका उसने दे दी 20%। अब 80% जो हार्वर्ड का रूल था, आप उसको एनालाइज करो कि आपको रीट में क्या लिखना है। देन यू से कि व्हाट कुड बी माय प्रेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ड्राफ्टिंग में होती है प्रेयर। इफ योर प्रेयर्स आर रॉन्ग यू मे हैव रिटन द बेस्ट ऑफ अपील, इट हैज नो मीनिंग। आपने लिख दिया मेरा डिले कंडोन होना चाहिए, नीचे प्रेयर में आपने इसको कही नहीं माय डिले शुड बी कंडोन, माय डिले ऑफ सो मेनी डेज शुड बी कंडोन। प्रेयर तो आपके है नहीं, तो व्हाट विल कोर्ट गिव यू? आप जो बची बकवास लिखा ऊपर, यू माइट से कोर्ट माइट से अमेंड द प्रेयर, तो अलाउ करते हैं। सो किसी तरह गरीब हो, आपको किसी का एफआईआर लॉन्च करनी है, किसी एंटी डाउरी सेल में आपको किसी हस्बैंड के नाम पे केस करना है, कोई एमसीडी के खिलाफ शिकायत लिखनी है, तो यू हैव टू नो अंडर व्हाट लॉ यू वांट टू राइट दिस and what is your ground. They will tell you these are, for example, divorce लेना तू बड़ा एक तो होशियार हो गया कि ये मैं तो नहीं लेना। Section 13 Hindu Marriage Act, there is a ground for impotency, mental cruelty. These are the 2 grounds, key grounds. अब आपको बने आपने किस चीज पे ग्राउंड लेना है, आप ग्राउंड देंगे, then you write what evidence is required to prove this particular point. It will tell you 1000 court judgments of Supreme Court कि mental cruelty किस किस केस में प्रूव हुई। आप एज ए लॉयर आपको अपना क्लाइंट देखना है, क्या ये आपके क्लाइंट के साथ ये हुआ, दैट इज 80%। सो उसने आपको ग्राउंड दे दिया बना के, फटाफट 2 मिनट में आपको सबको सामने आ गया, ये अपील बन गई। वो अपील नहीं बनी, अभी तो आपका काम शुरू हुआ उसके ऊपर। तो जो भी आप दुनिया में सोच सकते हो, जिस एरिया में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, AI कैन हेल्प यू ड्राफ्टिंग। आप सपोजिंग आपने अपील ड्राफ्ट कर दी, यू राइट रिव्यू एंड एडिट। रिव्यू फॉर इंग्लिश, रिव्यू फॉर ग्रामर, एडिट फॉर ब्रेविटी। They will further review and edit and give you a concise model. Then you again read it. Is it conveying what you originally drafted? If yes, go ahead with it. Then submission. अब आपको अपील फाइल करनी है। हमें कई लोगों को नहीं पता कि एमपी हाई कोर्ट का रिट का फॉर्मेट क्या है, पंजाब का क्या है, सबके अपने अपने फॉर्मेट है एज पर देयर हाई कोर्ट रूल्स। इट विल टेल यू हाउ टू सबमिट। जो आपको सिखाते हैं ना जी स्टैट में, जो लोग सिखा रहे थे अपील कैसे फाइल करनी है, यू नीड नॉट अटेंड एनी लेक्चर, इट्स अवेलेबल ऑन एयर। So much help of AI, provided you are able to read the adjudication order, you are able to read show cause notice, make a 1-page fact sheet, जो हम अपने मूत्र मंदिरों से बनवाई थी कि इशू क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपने सच पे 25 लाख रुपए जमा करा दिए ऑन योर ओन, लेट अस से 73, 74 पे पैसे जमा करा दिया आपने, वॉलंटरी पेमेंट। अब वो कहता है ये तो आपने वॉलंटरी किया, हम तो इसका कोई रिफंड देंगे आपको, ये किस बात का? उसे 5 करोड़ की डिमांड निकाली, 25 लाख कम किया, आपकी डिमांड 4 करोड़ 75 लाख कर दी। अब आपको अपील करनी है तो 475 का टेंशन जमा कराओ। अब आपको पूछना है क्या ये 25 लाख में एडजस्ट कर सकता हूं फॉर प्री डिपॉजिट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी एडमिटी डिमांड नहीं, आई कैन डिस्प्यूट इट, देयर वर नो डिमांड अगेंस्ट मी टू बाय पीस, आई डिड इट। वो ग्राउंड आपको बनाने, आपके यहां सच की जबरदस्ती आपसे पैसे ले गया कि 1 करोड़ जमा कराओ वरना तो अरेस्ट कर लेंगे, आपने जमा करा दिया। अब आपको उसको रिफंड लेना है या एडजस्ट करवाना है, अगेन गूगल, कैन टैक्स अथॉरिटीज डू दिस, इफ नो व्हाट डू आई डू। ये क्वेश्चन पुट अप आपको करने आने चाहिए। इट विल गिव यू वेरियस सजेशंस। आपको डिस्प्यूट करना है, नेक्स्ट डे लेटर देना आपको कि यू आर टेकन अंडर क्वेश्चन। इट विल टेल यू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंक्लूडिंग राधिका अग्रवाल, you cannot do this kind of extortion in
under section 67. So just imagine what AI can do to you as tax lawyers or any other lawyer, provided आपको बेयर एक्ट पढ़ने की आदत है. वो आदत नहीं है तो AI should not be used by you, because you will rule your client. आपके जो ग्राउंड होंगे आपके ऑर्डर से कोई उसका लेना देना नहीं होगा. Judgment scanning. 3 months ago, Mr. Bhatia was telling a case where department has engaged him 2 days before and he was able to win in the High Court. He may have had knowledge about the case law. But today he has to go through, he cannot do it. Because the legal field is churning out so many judgments. So for example, you write Radhika Agarwal, Supreme Court judgment. Put a dash. Has that been followed in any other Supreme Court ruling or any other High Court? Now imagine the impact of your drafting. Okay, Radhika Agarwal came in 25. It has been followed by Supreme Court judgment, High Court by this judgment. Which court can deny it? अगर हमारा मूड ट्रिब्यूनल हो, they will have nothing to say on this, provided your facts are identical with what you are writing. Right? Let us say Shanti Kiran. Has it been followed anywhere? The answer is no. Ecom Gill, followed in 24 High Court judgments so far and appeal dismissed. This makes you aware. It could be favor or we lawyers don't worry कि हमारे जीते हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, as long as we've done our best job. But it will forewarn you कि आपको अगर इस ग्राउंड पे जाना है तो इसको ऐसे वोट करना है. अब सपोजिंग आपके अनफेवरेबल है, then give a further query. How can we debate it? AI will tell you how are you able to debate this also. They'll give you possible grounds. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब पहली चार्जशीट इश्यू हुई थी, बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट, फॉर ही वाज फाइंड $5 million ही पेड, वो 550 पेज की थी. मैंने बताया था आपको. अटॉर्नी जनरल ने उसको एआई मॉडल में डाल दिया पूरा का पूरा. इसके ग्राउंड्स हो. ही गेव एन इंटरव्यू कि ऑलमोस्ट 85% ग्राउंड्स वर करेक्ट हाउ टू रिबट द चार्जशीट. So to that extent it's used, provided again you know what you are doing. So when you scan judgments, आज हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं, किसी से पूछते हैं, अरे वर्मा जी ने हाई कोर्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, वर्मा जी को क्या पता भाई. हाँ यार कुछ हुआ तो था, मैं तुमको देख के बताऊंगा, मैं कभी देख के बताऊंगा ही नहीं दोबारा. पर यू कैन यूज एआई मॉडल. लेकिन पता होनी चाहिए कि आपको शांतिकरण में किस पॉइंट पे जजमेंट थी. वो थी उनके आर्थिक कैंसिल किए गए थे, उन्होंने एक लॉ ले डाउन किया कि आल्सो प्रोसीड अगेंस्ट सेलर. आपका इश्यू है ही नहीं. आपका इश्यू कहता है कि आपका कोलूजन था, फ्रॉड था. शांतिकरण में ये पॉइंट नहीं था, तो शांतिकरण इज नॉट एप्लीकेबल. ईकॉम गिल में ये पॉइंट नहीं थे. बट राइट फ्रॉम डे वन ऑफ चुनीलाल प्रसाद जी लाल देवे से, इफ इट वाज अ फ्रॉड, नो रिलीफ. तो सिंपली बिकॉज आरसी पर कैंसल, डोंट जंप. रीड द फुल एडजुडिकेशन ऑर्डर. उसके आगे कुछ और लिखा है, वो कहता है मैंने ट्रांजैक्शन दी, ये सारा फ्रॉड है, ये बंदे कभी थे ही नहीं, देवर नाइट बाय फ्लायर इश्यूज, कोई दुकानें नहीं थी, कुछ नहीं है मेरे पास फिजिकल रिपोर्ट से. शांतिकरण में इश्यू नहीं था. बट इफ यू हैव ए सिंपल शांतिकरण इश्यू, इट हेल्प्स यू इफ एप्लीकेबल टू जीएसटी. इट्स नॉट ए जजमेंट अंडर जीएसटी. सो दिस इज वे हाउ जजमेंट्स यू कैन स्कैन थ्रू. So you can even forecast the outcome of your case, whether you are winning or losing. So you can forewarn your client, भैया सब कुछ बेच दे, अभी जो करना कर दे before recovery of renting the ship to you. शायद जगन्नाथ उधर में यही किया था. भाटी साहब ने केस किए थे, मैंने किए थे, चावड़ा साहब ने किए थे. हमने कहा सब कुछ बेच दे. अब उसका एक ही था कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे लखनऊ का बेचना, आगरा का, उन्हें सब कुछ बेच बूझ दिया, मर गया, कुछ नहीं मिला. नहीं, हमने तो पैसे कमाने के लिए केस किए थे भाई. नहीं, भाटी साहब का चेक बाउंस हो गया था. शराफत का चेक बाउंस हुआ था, मेरे चेक बाउंस नहीं हुए थे. व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये 20 साल पहले कुछ और थी दुनिया, अब दुनिया बदल चुकी.
तो अगर आपको लिटिगेशन करना है तो आपको ऑर्डर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ऑर्डर पढ़ने, नॉट व्हाट फेवर्स यू, व्हाट डजंट फेवर यू, फर्स्ट रीड दैट। जो फेवर है वो तो है, हम लोग फेवर वाली पॉइंट पे टापना शुरू कर देते हैं। वो फेवरेबल हो सकता है 10% इम्पैक्ट है, 90% तो उसका नेगेटिव का इम्पैक्ट है। तो तोड़ आपको नेगेटिव का ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव का नहीं ढूंढना। सो एआई कैन हेल्प यू ऑन दिस इश्यूज आल्सो। दिस वी हैव डन। ये कुछ साइट्स हैं जो इंडिया में चलाते हैं लोग। I told you I have nothing to say on this. ये जो फ्रॉड होते हैं, एल्गोरिथम मॉडल आप इतने बड़े हैं, दे कैन टेल यू कि आपका मकान की रजिस्ट्री में कितने फ्रॉड है। जो खसरा नंबर, रजिस्ट्री नंबर लिखे होते हैं ना, नाउ एडवांस एआई रिसर्च टेल यू कि ये ट्रेस कहां से हुआ और उसमें क्या क्या हुआ। सपोजिंग आपने मकान खरीदा जो पहले 10 बार बिक चुका है, आपके पास तो एक ही सेलर के पेपर है, अपने पैसे दिए, आप अपने पार्टी कर ली घर में। जो पहले वाले 8 थे उन्होंने क्या किया था, मे बी इट वाज मोर्गेज, यू डोंट नो। तो एआई मॉडल विल टेल एडवांस रिसर्च जहां जी सिस्टम फॉलो करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या हुआ। ये जितने एमपीज हैं जो झूठे एफिडेविट फाइल करते हैं, इफ दे यूज एआई मॉडल दे विल ट्रेस द हिस्ट्री, इनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने रेप किए, कितनी चोरियां की, इनके काफ एआई मॉडल कैन थ्रो इट आउट। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज दे डू नॉट यूज एआई मॉडल फॉर सच केसेस। हमारे देश में भी नहीं, और देयर हिस्ट्री विल कम आउट। सो किसी भी डॉक्यूमेंट को रिसर्च उसमें फ्रॉड है या नहीं, एआई कैन हेल्प यू। Judges, most of the judges have used AI judgments in 6-7 cases. They were fired by Supreme Court. If these judgments don't exist, एक केस में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं ये जजमेंट कहाँ है ही नहीं, हमने ढूंढी, जजमेंट नहीं है, आपने कहाँ से लिख दी, उसके बेस पे आपने बेल दे दी उसको। एक जज ने 550 बेल ऑर्डर कर दिया 2 दिन में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने, वो एआई मॉडल था, छापे साइन किया, भाग गए। कोई कर सकता है, हुमनली पॉसिबल नहीं है ना। सो इफ यू हैव टू इन्वोक एआई सिस्टम इन जुडिशियल सिस्टम्स, दैट विल बी वेरी बैड फॉर एनी कंट्री इफ दे डू इट। कहते हैं यू आर नॉट पासिंग जजमेंट, यू आर पासिंग जजमेंट थ्रू मशीन्स। तो जो ह्यूमन टच जज में होना चाहिए वो एआई मॉडल इट कैन नॉट ब्रिंग। सो इट्स अ कर्स और ब्लेसिंग, नाउ यू डिसाइड। I leave it open. That's why the heading was AI for professionals is a curse or blessing. It's a blessing if you know how to use it. It's a curse if you misuse it. Thank you so much.